سب سے پہلے آپ کو بتائیں سٹی کونسل میں بڑے شہر کے لیے بڑے فیصلے، اہم قراردادیں منظور۔ جہانگیر روڈ ناتا خان برج کی مرمت ہوگی۔ شارف فیصل سے حبیب یونیورسٹی تک سڑک اور نالے کی تعمیر کا فیصلہ۔ کریم آباد انڈر پاس کو ڈاکٹر عاصم کے نام سے منسوب کرنے کی قرارداد بھی منظور۔ بلدیہ عثمہ کراچی کے ضمنی قوانین سے متعلق قرارداد منظور۔ ذوالفقار آباد آل ٹرمینل کے لیے اہم پیش رفت، لے آؤٹ پلان میں 50 ایکڑ اضافی اراضی کی قرارداد منظور۔ ایوان کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، بلدیہ ٹاؤن سٹیزنز فاؤنڈیشن کے لیے اراضی کی فراہمی کی قرارداد بھی منظور۔ اب آپ کو بتائیں مواج کوٹ میں 22 ایکڑ رقبے پر لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ بڑے پلاٹ میں ٹائر سٹور کیے گئے تھے جہاں آگ لگی۔ ہوا کی سمت بدلنے سے آگ کی شدت بڑھ گئی۔ پانی کی قلت کے باعث فائر فائٹنگ کا عمل 5 گھنٹے رکا رہا۔ زہریلے دھوئیں سے قریبی آبادیاں شدید متاثر۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مواج کوٹ میں کل سے لگی آگ بے قابو ہے۔ بڑے پلاٹ میں ٹائر سٹور کیے گئے تھے جہاں آگ لگی۔ ہوا کی سمت بدلنے سے آگ کی شدت بڑھ گئی۔ پانی کی قلت کے باعث فائر فائٹنگ کا عمل 5 گھنٹے رکا رہا۔ زہریلے دھوئیں سے قریبی آبادیاں شدید متاثر۔ ناظرین، ٹائر بنانے والی فیکٹریوں میں ربر، کیمیکل اور دھاتیں شامل ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق جب ٹائر جلتے ہیں تو سخت کیمیائی عمل کے نتیجے میں زہریلی گیس اور باریک کاربن ذرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ذرات چھوٹے مگر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہوا میں شامل ہونے کے بعد یہ ذرات کثیر المدت تک محیط رہ سکتے ہیں۔ موسمیاتی ماہر ڈاکٹر عارم عالمگیر کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ٹائر بنانے والی جو بھٹیاں ہوتی ہیں یا جہاں پہ ٹائر کو تیار کیا جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے ٹائر کو آگ لگائی جاتی ہے، کیونکہ جو ٹائر ہے اس کے اندر ربڑ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے میٹلز بھی ملائے جاتے ہیں، ہیوی میٹلز، جس میں زنک ہے، لیڈ ہے، کیڈمیم ہے، کرومیم ہے، یہ ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ پالیمرز ملائے جاتے ہیں۔ تو جب کسی بھی وجہ سے آگ لگتی ہے اور یہ ٹائرز جلتے ہیں یا کسی احتجاج کی وجہ سے ٹائرز کو جلانے کا عمل اسٹارٹ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو ٹاکسک گیسز ہیں جس میں کاربن مونو آکسائڈ، پرٹیکولیٹ میٹر جو کہ کاربن کے ذرات کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے، کاربن مونو آکسائڈ، آکسائڈس آف سلفر اور آکسائڈس آف نائٹروجن جو ہے یہ فضا میں آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو والیٹائل آرگینک کمپاؤنڈس ہیں جس میں بینزین بہت کامن ہے، وہ بھی ہماری فضا میں آتا ہے، اور اگر یہ کنٹینیوسلی آتا رہے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ پرسسٹنٹ آرگینک پالوٹنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی فضا میں ایک بار آ جائیں تو دوبارہ نہیں جاتے۔ اس میں ہم فیورونس کا نام لیں گے، تو وہ بھی ٹائر کی برننگ کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری فضا میں آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بیلنس کر دیا جائے تو شہری اور وہاں کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس کے بزرگ صحت اثرات سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آنکھوں کے انفیکشن، جلدی امراض، ایستما اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کراچی میں 10 ماہ کے دوران 3000 سے زائد واقعات آتش زدگی کے رپورٹ ہوئے۔ صرف ایک ماہ میں 270 واقعات ہوئے جہاں فائر بریگیڈ نے پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آتش زدگی کے واقعات کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ چیف فائر آفیسر فائر بریگیڈ محمد ہمایوں خان کے مطابق 10 ماہ کے دوران آتش زدگی کے 3000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ صرف ماہ اکتوبر میں آگ لگنے کے 270 چھوٹے بڑے واقعات ہوئے۔ سال 2025 میں اوسطاً ماہانہ 300 آگ لگنے کے واقعات پیش آئے۔ زیادہ تر واقعات عمارتوں میں کی جانے والی ناقص وائرنگ اور شارٹ سرکٹ کے باعث رونما ہوئے۔ خاص طور پر نومبر اور دسمبر میں سردی اور خشک موسم کے باعث آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محکمہ پانی اور صفائی اپنی تنصیبات کی حفاظت اور مرمت میں ناکام دکھائی دیتا ہے، جس کی واضح مثال لاگن چورنگی، کراچی کے چورنگی پمپنگ سٹیشن کی ہے، جہاں سوئچ روم خستہ حال ہے، پانی کی موٹریں خراب ہیں اور بجلی کی فراہمی کا کوئی متبادل انتظام نہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ پلستر، ادھڑی چھت، جگہ جگہ دراڑ پڑی چار دیواری، ڈھکنے سے آری اور حجم میں چھوٹا پانی ذخیرہ کرنے کا ٹینک، یہ مناظر ہے ناگن چورنگی پر قائم پمپنگ اسٹیشن کے، جہاں محکمہ پانی اور صفائی اپنی تنصیبات کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ یہاں کا جو ماحول ہے بہت خراب ہے، موٹریں بار بار خراب ہو جاتی ہیں اور پانی کا ٹینک بھی بہت چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی فراہمی میں
परेशानी होती है। शहरी कहते हैं पानी की मोटरें कमजोर हैं और अक्सर खराब रहती हैं, जबकि स्टैंड बाय जनरेटर का कोई वजूद नहीं। ये मोटरों की सूरत हाल आपके सामने है। ये मोटरें बिल्कुल खस्ता हो चुकी हैं, नाकारा हो चुकी हैं। इसका जो सकिंग पंप है वो खत्म हो चुका है। जनरेटर तो आप ख्वाबों में देखेंगे, जनरेटर तो कोई नाम की चीज ही नहीं है। जब लाइट चली जाती है तो पानी ओवरफ्लो होकर टैंक भर जाता है और पानी रोड के ऊपर आ जाता है। नागन चौरंगी पंप स्टेशन से नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स को पानी फराहम किया जाता है, जो पंपिंग स्टेशन की नाकिस सूरत हाल के बाइस अक्सर किल्लत आब का शिकार बन जाते हैं। नाजरीन, कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। फ़ज़ाई आलूदगी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। माहिरीन कहते हैं कि दरख्तों की कमी, गाड़ियों के धुएं और तामीराती सरगर्मियों ने फ़ज़ा को जहरीला बना दिया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उठने वाले धूल मिट्टी ने हवा के मयार को मज़ीद ख़राब कर दिया है। माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर के मुताबिक फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और शहर में सब्ज़े की कमी ने कुदरती फिल्टर सिस्टम को मुतासर किया है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। थर्ड पोजीशन है कराची की, ये कंसिस्टेंटली जो है हमें नज़र आ रही है। और इस पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त पूरे कराची में आप कहीं भी चले जाएं, आपको डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के काम नज़र आएंगे। और प्रॉब्लम यह है कि उन कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ कुछ सेफ्टी मेजर्स अगर कर लिए जाएं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वक्फे से पानी का स्प्रे किया जाए, इससे ना सिर्फ वर्कर्स की सेफ्टी होगी बल्कि जो वहां से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी जो है एक रिलीफ मिलेगा। और आप अगर कराची में किसी ओवरहेड ब्रिज से व्यू करेंगे तो आपको जो फ़िज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनविजिबल नज़र आएगी। कराची में प्राइवेट गाड़ियों के बाद हैवी ट्रैफिक की भी शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने 4 रोज के दौरान डंपर्स, वाटर टैंकर्स और ट्रक वालों को 416 ई चालान जारी कर दिए और इन गाड़ियों को मजमूई तौर पर 81 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी किए गए। कराची में ई चालान की एक और गलती पकड़ी गई। हैदराबाद के शहरी का चालान भी कर दिया गया। मामले पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने शहरी से माजरत कर ली। मॉनिटरिंग रूम ऑफिसर जाहिद का कहना है कि गाड़ी की नंबर प्लेट की वजह से गलती हुई, जिसे सुधार लिया गया है। देखिए जी, ये AI बेस्ड कैमराज हैं और टेक्निकल एरर हर चीज़ में आते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो इसके ऊपर खैर हमने स्ट्रिक्टली कंप्लायंस किया है और आइंदा ऑपरेटर्स को हिदायत की है कि इस तरह की आइंदा गलती ना हो। और ये एक आधे नंबर की आगे पीछे होने की वजह से ये मिस रीडिंग हो गई और जिसकी वजह से ये चालान गलत जगह पर पहुंच गया। इसके लिए हम माजरत भी करते हैं और आइंदा इस पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जाएगी। अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर शहर भर में तजावुज़ात के खात्मे की 15 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज़ आज रात से किया जा रहा है। ये ऑपरेशन नाइट शिफ्ट में किया जाएगा, जिसमें सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा करने वालों के साथ साथ देर तक खुले रहने वाले होटलों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर की सड़कों से कब्जा माफिया के अंधेरे मिटाने का मिशन तजावुज़ात के खिलाफ 15 रोज़ नाइट ऑपरेशन आज रात से शुरू किया जा रहा है। बफर जोन के रईस जाफरी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात ने शहरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि सर्विस रोड पर डेंटर प्रिंटर्स के कब्जे, चाय होटलों और खाने पीने के ठेलों ने आमदोरफ्त को मुश्किल बना दिया है। ये नया रोड बना है सैयद रईस अहमद जाफरी रोड। इस पर रोड के साइड में बिल्कुल रोड पर आकर सर्विस रोड पर डेंटर पेंटर ने, चिंची ने और बहुत सारी जो रोजमर्रा की गाड़ियां चल रही होती हैं वो रोड पर पार्किंग कर देते हैं, जिससे गाड़ियां चलना तो दूर की बात, पैदल चलने वालों के लिए भी चलने का रास्ता नहीं होता। फुटपाथ पूरी जो है उन्होंने डेंटर पेंटर ने घेर रखी है, जिसकी वजह से लोग सड़क पर चलते हैं। शहरियों ने तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम का खैर मकदम किया, मगर साथ ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर दिया। उससे ये है ना, सर्विस रोड के ऊपर चलने की जगह नहीं है और फुटपाथों के ऊपर चलने की जगह नहीं। फुटपाथों के ऊपर सारे तजावुज़ात हैं, तो आम शहरी वो कहाँ चलेगा? वो मेन रोड पर चलेगा तो मेन रोड पर ट्रैफिक भी जाम होगा, हादसात का भी सबब बनेगा। वैसे ही टूटी फूटी सड़कें। तो ये एक दफ़ा जो हो जाए ना ऑपरेशन, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हमेशा के लिए होना चाहिए। शहरियों का कहना है कि बेहंगम तजावुज़ात ने शहर का हुस्न तबाह कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसा मुस्तकिल कानून बनाया जाए जिससे कोई भी सरकारी अराज़ी पर दोबारा कब्जा ना कर सके। कैमरामैन अब्दुल क़य्यूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में जल्जले के झटके, शिद्दत 2.2 और गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज DHA कराची के शुमाल में 24 किलोमीटर के फासले पर था। शहर कायद में जल्जले के झटके, जल्जले की शिद्दत 2.2, गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज DHA कराची के शुमाल में 24 किलोमीटर के फासले पर था। अब आपको बताएं, NICBD के सरबराह ने गैर मुल्की दौरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक साल में 4 गैर मुल्की दौरे किए, वो भी मुफ्त।
डॉक्टर ताहिर सगीर ने अगस्त 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान लंदन, स्पेन और रियाद के 4 गैर मुल्की दौरे किए। दस्तावेजात के मुताबिक इन तमाम दौरों के अखराजात फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बर्दाश्त किए। ज़राए का कहना है कि इन स्पॉन्सर्ड दौरों पर करोड़ों रुपए के अखराजात आए, जबकि इदारे की शफाफियत पर सवालात जन्म ले रहे हैं। तर्जुमान NICBD के मुताबिक मामले की तफसीलात हासिल की जा रही हैं और जल्द मौके फराहम किया जाएगा। अवाम पर महंगाई का एक और वार। पहले चीनी और टमाटर ने जेब पर डाका डाला, अब प्याज ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई के बेकाबू जिन ने रोजमर्रा की अशिया को आवाम की दस्तरस से दूर कर दिया। टमाटरों के बाद प्याज भी तेजी की जानिब गामजन। अब आंसू सिर्फ प्याज काटने से ही नहीं बल्कि खरीदने पर भी आने लगे हैं। प्याज शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई और अरबाब इख्तियार को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मार्केट में महंगे दामों मिलने वाली प्याज ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। प्याज भाई खरीदने, अभी मैंने खरीदी है 1 किलो 200 रुपये, हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था, वो आंसू आ गए। अब प्याज काटने में भी आंसू, खरीदने में भी आंसू। अब जाए कहाँ? ये गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए। गवर्नमेंट का रेट कितना है? 100 और कुछ रुपए है, ये 200 रुपये खुलेआम बिक रही है, कोई कहने वाला नहीं है। पहले 100 की आती थी प्याज, अभी 200 तक पहुंच गई है। चलो जिनके पास है वो तो ले लेते हैं ना, जो बेचारे ऐसे गरीब है वो कहाँ से खरीदेंगे? एक दिन की तो बात नहीं है ना, रोज की बात है। मार्केट में 3 से 4 रोज में प्याज की फी किलो कीमत में 100 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कुछ ही रोज कबल जो प्याज 100 रुपए में मिल रही थी अब 180 से 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। ताजिरों के मुताबिक प्याज की सप्लाई मुतासिर होने से कीमतों में ये तेजी देखी जा रही है। दूसरी जानिब टमाटर की कीमतों में कमी ने थोड़ा रिलीफ जरूर दिया, जो 500 रुपए फी किलो से घट कर 150 रुपए तक आ गया है। महंगाई के इस तूफान ने अवाम के बजट को हिलाकर रख दिया है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस बार अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कदम उठाती है, या फिर प्याज की डबल सेंचुरी के बाद कोई और सब्जी मैदान में उतरने वाली है। कैमरामैन अमजद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाजरीन, शहर कायद में मसाइल के अंबार हैं। टूटी फूटी सड़कें और गंदे पानी से भरी गलियां लोगों के लिए दर्द सर बन गई हैं। जेट लाइन में पानी की लाइनें टूटने से मीठा और सीवरेज का पानी सड़कों पर बहने लगा। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखते हैं। जगह जगह टूटी सड़कें, बहता पानी और ताफून से भरी फिजा। जेट लाइन के मकीन गुज़श्ता 4 साल से अजियत में मुब्तला। इलाके में पानी की पाइपलाइन टूटने से मीठा और सीवरेज का पानी एक साथ सड़कों पर बह रहा है। गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि शहरियों की आमदोरफ्त और कारोबार दोनों मुतासिर हो चुके हैं। रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत के बाइस पानी की शदीद किल्लत के बावजूद लाखों गैलन मीठा पानी रोजाना जाया हो रहा है। तकरीबन 3-4 साल से ना ये पानी बिल्कुल ऐसे आ रहा है, जाया हो रहा है, पानी नहीं रुकता। ये पीछे ग्राउंड है, वहाँ पे वाल लगे हुए हैं इनके, तो वाल टूटे हुए हैं इनके। अब डिफेंस में देखो लोग कंटेनर मंगवाते हैं, यहाँ पे तो फ्रीज आया हो रहा है सारा। इलाका मकीनों का शिकवा है कि 4 साल हो गए हैं, हर बार शिकायत करते हैं मगर कोई नहीं आता। बदबू और ताफून से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही है। इसकी वजह से कारोबार आपके सामने है, कोई ग्राहक नहीं है, कोई आदमी नहीं है रोडों पे, लॉस ही लॉस हो रहा है। जब कस्टमर नहीं आएगा तो कहाँ चलेंगे हमारे कारोबार। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पानी की लाइनों की फौरी मरम्मत और सड़कों की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन नजरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। छोटे काश्तकारों के लिए गंदम की पैदावार बढ़ाने का 55 अरब रुपए का सपोर्ट पैकेज मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 4 लाख से जायद हारी कार्ड तैयार करने और सिंध बैंक के जरिए छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की मुंतकिली की हिदायत की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि इस साल सूबे में 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त होने की तवक्को है। उन्होंने बताया कि हारियों के ज़मीन रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए जदीद एंड्रॉयड हेड्स ऐप मुतारिफ कराई गई। महकमा ज़राअत के मुताबिक हेड ऑफिस और अजला को जोड़ने वाला मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी तैयार कर लिया गया। बहिरा अरब के मशरकी वस्ती हिस्से में मौजूद डिप्रेशन शुमाल मशरक की जानिब बढ़ गया। डिप्रेशन इस वक्त कराची से तकरीबन 712 किलोमीटर जनूब मशरक में मौजूद है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम भारत से 330 किलोमीटर जनूब मगरिब में है और आइंदा 24 घंटों में मजीद शुमाल मशरक की जानिब बढ़ने का इम्कान है। ये डिप्रेशन बतदरीज कमज़ोर पड़ने का इम्कान रखता है और फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई ख़तरा नहीं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची के मुताबिक सिस्टम की मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी मुमकिन तब्दीली की बरवक्त इत्तला दी जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराची में सर्टिफिकेट तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया।
38वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा को स्नात दी गई। बसीम इफ्तार की तफसीलात रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। अवामी खिदमत, कायद-ए-आज़म का विजन और जदीद इंतज़ामी सलाहियत। नीपा में तरबियत पाने वाले अफसरान नए दौर के लिए तैयार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराची में 38वें सेंटर मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मल करने वाले 29 अफसरान के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरा को सर्टिफिकेट्स दिए गए। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े चैलेंजेस के बावजूद अवामी खिदमत का जज्बा ही असल कुव्वत है और अफसरान को अपने किरदार को वक्त के तकाजे के मुताबिक ढालना होगा ताकि अवाम की बेहतर खिदमत की जा सके। of National Institute of Public Administration Karachi, participant as a speaker or the custodian of an august house which is called Sindh Assembly, but as a fellow believer in the power of public service. It is a privilege to be here at NIPA Karachi celebrating your graduating ceremony, which is the 38th Senior Management course, a milestone that marks not just achievement but transformation. This is more than a ceremony, it is a declaration that you all are ready to lead, to serve, and to shape the future of governance in Pakistan. स्पीकर सिंध असेंबली बोले कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार और विजन हमारी रहनुमाई के लिए मशअल रहा है। Your work echoes far beyond these walls in every policy shaped and every life touched by your graduates. And I also want to thank you for the opportunity to be part of this movement. It is a privilege to stand before such dedicated officers and remarkable mentors. तकरीब के अख्ताम पर अफसरान ने मुल्क व कौम की खिदमत के अज़म को दोहराया। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। मुल्जिमान 4 मिनट तक गली में वारदात करते रहे। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान ने वारदात की। सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। मुल्जिमान 4 मिनट तक गली में वारदात करते रहे। सीसीटीवी फुटेज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान ने वारदात की। कब्जा माफिया की जड़ें काटने का वक्त आ गया। आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद अफजल हमीद ने डीजी केडीए आसिफ जान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिस दौरान गैर कानूनी कब्जों के खात्मे और ज़मीनों के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। मुलाकात में सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर और कोरंकी में जारी तजावुज़ात की निशानदही की गई और फौरी बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सैयद अफजल हमीद ने कहा कि कब्जा माफिया की जड़ें काटने के लिए फौरी सर्वे रिपोर्ट जारी की जाए। शहरी अराजी को कब्जा ग्रोहों से बचाना वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है। उन्होंने गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और शहरी तरक्की में शफाफियत के लिए मौसर तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली पर जोर दिया। अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं हफ्ते के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम रहा। इंडेक्स में 4,898 पॉइंट्स की शानदार तेज़ी रिकॉर्ड, जो 3.13% इजाफे के साथ 1,61,631 की सतह पर बंद हुआ। हिस्सा बाजार में कारोबार के आखिरी रोज़ तेज़ी रही। इंडेक्स में 4,898 पॉइंट्स की शानदार तेज़ी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी दौर नए इनमें इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,62,194 जबकि कम तरीन सतह 1,58,195 पॉइंट्स रही। मार्केट में 39.69 अरब रुपए मालियत के 87.78 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। 372 कंपनियों के शेयर्स में तेजी, 77 में कमी जबकि 37 में इस्तेकाम देखा गया। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी के रुझान ने मार्केट को सहारा दिया। FPCCI ने पैदावारी लागत में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू का कहना है कि सिंध हुकूमत ने दरामदी ईंधन पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स आयद कर दिया, जिसका बोझ आवाम और सनतों पर पड़ेगा। हमारा मुतालबा है कि पैदावारी लागत कम की जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। एक जहाज़ 50,000 मेट्रिक टन का होता है ऑयल का, और वो तकरीबन कोई 30 से 40 मिलियन डॉलर का जो है उसकी कॉस्ट आती है। अगर उसके ऊपर 1.8% का एस टैक्स आ जाता है तो ये 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से वो
इसकी कॉस्ट आएगी जो कि डायरेक्टली आवाम को देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ऑयल कंपनीज जो हैं जो कि इंपोर्ट कर रही हैं वो कैसे बैंक गारंटी दे सकती हैं कि या तो फिर हुकूमत ये फैसला कर ले कि 3 रुपए वो इसका रेट बढ़ा दिया गया है और वो उसके अंदर एडजस्ट कर लें। ये कैसे हो सकता है कि वो बैंक गारंटी दे दें और वो जो भी ऑयल है वो उस 3 रुपए के ये इजाफी जो आपकी कॉस्ट है उसके बगैर ही सेल होता रहे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अभाम है, बहुत बड़ा इसके अंदर अकूना है, तो इसको ठीक किया जाए। नाजरीन, सोना एक बार फिर महंगा। मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 5,300 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,24,162 रुपये पर पहुंच गई। साथ ही 1 तोला चांदी भी एक ही दिन में 158 रुपये महंगी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोना $53 महंगा होकर $4,018 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मकामी सराफा बाजार में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 5,300 रुपये महंगा होकर 4,24,162 रुपये पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये महंगा होकर 3,63,650 रुपये पर पहुंच गया और 1 तोला चांदी 158 रुपये इजाफे से 5,192 रुपये पर पहुंच गए।